बताइए if you have any type of query about separation of variables, first order differential equations and solution के लिए मैंने बताया कि what is the first order separation of variables. मैंने क्वेश्चंस दिए हुए थे, क्वेश्चंस दिए हुए थे सॉल्व करने के लिए, वो सॉल्व हो गए हैं? यस मैम। चले ठीक है। उसके बाद मैंने एक और वीडियो आप लोगों को कहा था कि चेक कीजिए। Yes, ma'am. कितने प्रोसीजर्स हैं? Yes, ma'am. First tell me please how many procedures through which you can find out the solution of first order differential equations. Tell me please. Variable, separable or homogeneous. थोड़ा ऊंची बोलिए। वेरिएबल सेपरेबल से मैम, और नेक्स्ट? और होमोजीनियस इक्वेशंस के थ्रू। जी, होमोजीनियस मेथड। जी, होमोजीनियस इक्वेशंस। बताइए मुझे होमोजीनियस का जो मैंने वीडियो आप लोगों से कहा था चेक करने के लिए, वो आप लोगों ने नोट डाउन किया, देखा है उसको? Yes, ma'am. जी मैम। चलें उसी को पहले एक दफ़ा डिस्कस करें। मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मटेरियल पहले। हाँ जी, ज़रा मुझे मेक श्योर करें कि आप लोगों को मटेरियल नज़र आ रहा है। यस मैम। Yes, ma'am. चलें जी, आइए ज़रा फिर हम लोग नेक्स्ट काम करते हैं कि what is the next procedure for solving the first order differential equation? That will be the homogeneous differential equation with the help of homogeneous differential equation. So any differential equation of the form, अच्छा, basically homogeneous differential equation के लिए you should have the two concepts which you are using for the journally, and second specifically you are using for the for solving the differential equations. अगर मैं जर्नल पर बात करने से पहले आप लोगों के साथ शेयर करूं वाइट बोर्ड, ठहरें ज़रा एक मिनट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ये देखिए, चले वाइट बोर्ड शेयर हो गया सबके साथ? जी मुझे बताइए, वाइट बोर्ड शेयर हो रहा है? Yes, ma'am. ओके। यस मैम। ये देखिए ज़रा, जर्नल कॉन्सेप्ट मैं पहले देती हूँ आप लोगों को।
ये देखिए ज़रा कि if I am written, this is the general concept for this. If I am written dy by dx is equals to function of x into y over g of x into y. ठीक है, this is the homogeneous function if I am saying that कि both x and y functions are of the same degree. This is the this is the generalized definition for the homogeneous equation. ठीक है, first of all your equation should be written in this form कि dy by dx is equals to function of xy over g of xy, and you are saying that कि both x and y are of the same degree. For example, if I am written function of xy is equals to, look, 4x minus 3y plus x. Tell me please, is this a homogeneous equation? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सारे वेरिएबल्स की डिग्री जो है वो सेम होनी चाहिए. Yes, x ma'am. की डिग्री क्या है? 1. What is the degree of this x? इसकी डिग्री क्या है? 1. 1. y की डिग्री क्या है? 1. 1. एंड इस x की डिग्री क्या हो गई? 1. 1. So it means that this is homogeneous differential equation. अच्छा, आप मुझे जरा बताइए, मैं थोड़ा सा इसमें चेंज करने लगी हूँ. Now tell me please, is this a homogeneous differential equation or not? बोलिए. Now No, tell ma'am. me please, is this a homogeneous? No, ma'am. रीजन बताइए कि बताएंगे आप लोग. मैम x की पावर 0 और लास्ट में तो हमारे पास 1 है. जी, this is the constant in the last term, so if I am representing with the variable, so it will be looking like this. It means that something part 0 is equals to 1. So यहाँ पर degree is not same. One more. If I am written g of xy is equals to x square minus x into y plus y square. Tell me please about this equation. Is this homogeneous? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जी, इसकी डिग्री आपके पास 2 आ गई. इन दोनों की डिग्रीज को ऐड करके हम चेक करेंगे. दिस बिकम्स 2 और इसकी भी आपके पास डिग्री 2 आ गई. एंड वन लास्ट टाइम, h of xy is equals to x square minus x plus y square. जी, tell me please. Non-homogeneous. This is the non-homogeneous equation. ठीक हो गई. So this is the generalized concept of the homogeneous equations. But we are talking about जी, हम डिफरेंशियल इक्वेशंस में बात कर रहे हैं. तो डिफरेंशियल इक्वेशंस का आप लोगों ने वहाँ से सुना भी होगा वीडियो में. मैं इसको अपने वर्ड्स में 5 मिनट में रिपीट करूँगी इसको कि एनी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म विच इज़ रिटन एज dy by dx is equals to function of y over x. मीन्स डिफरेंशियल इक्वेशन किसी भी फॉर्म में हो, फर्स्ट स्टेप विल बी यू हैव टू मेक इट इन दिस फॉर्म. फॉर्म क्या बनती है कि लेफ्ट साइड पर आपके x
एंड राइट साइड पर आपके पास फंक्शन ऑफ y ओवर x। यहाँ पर सिर्फ म्यूट द माइक म्यूट कीजिए। और राइट साइड पर आपके पास होना चाहिए फंक्शन ऑफ y ओवर x। फंक्शन ऑफ y ओवर x को एक्चुअली अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा काम है यहाँ पर। ओके, व्हेन यू आर मेकिंग द डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस, इसका एक ही प्रोसीजर है। टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस वी ऑलवेज पुट y ओवर x इज इक्वल्स टू v। ऐसे किया हुआ है। जिन बच्चों ने वीडियो चेक की है, आप मेरे साथ मुझे बताएंगे कि क्या ये ठीक है, ऐसे ही है? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बिल्कुल ऐसा ही है. हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। पेपर में चेक कर रही हूँ आजकल आप लोगों को मैं उस बच्चे का नाम बताऊंगी इंशाल्लाह। मुझे जरा पेपर्स पहले चेक कर लेने दीजिए। एसिम्टोट वर्ड है, एसिम्टोट्स फाइंड आउट करने के लिए दिए थे ना, याद है कुछ एसिम्टोट्स? Yes, ma'am. Yes. एसिम्टोट का लिखना नहीं आता। एसिम्टोट को समझना तो बहुत दूर की बात है, वो आप जैसे नालायकों का काम थोड़ी ना है एसिम्टोट को समझना। जिस बच्चे को इतना ही नहीं पता कि मैडम बोल क्या रही है, मैडम की वर्डिंग क्या है, या बुक खोल कर देख लें। अगर हमें मैडम का लफ्ज़ समझ नहीं आ रहा तो हम बुक खोल कर देखें। एक बच्चे ने एसिम्टोट, किसी बच्चे ने उसको TODE लिखा हुआ है, किसी बच्चे ने उसको TOYE लिखा हुआ है, मतलब पता ही नहीं है। मार्क्स भी उसके अकॉर्डिंग मिले हैं फिर आपको। ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और प्लीज ये डेरिवेटिव लेना ना सीख लीजिएगा। मैंने उस दिन क्लास में भी अनाउंस किया था, डेरिवेटिव लेना नहीं आता आप लोगों को। बाकी और हर टाइप की हरकत करनी आती है, डेरिवेटिव नहीं लेना आता। इसलिए ये डिफरेंशियल इक्वेशंस बिल्कुल आसान काम नहीं है। ये जितना डिफिकल्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, इंसान पागल हो जाता है इसके पीछे। और मुझे नहीं पता है कि आप लोगों को क्या, आपकी बस मैंने तो पढ़ा के चले जाना होता है। आगे तो मैं पेपर में ही देखूंगी ना कि क्या काम किया हुआ है आप लोगों ने। और मैंने ये भी चीज़ पहले लेक्चर में डिस्कस कर दी थी कि कभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन बाय द नेम नहीं आता कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ होमोजीनियस। आप लोगों ने क्वेश्चंस को देख के अंडर, अभी तो मैं 10-10 क्वेश्चंस दे रही हूँ ना सॉल्व करने के लिए अकॉर्डिंग टू द टॉपिक। जब फर्स्ट ऑर्डर चारों प्रोसीजर्स हो जाएंगे, मेरे पास एक जिल की बुक है, जिल की बुक में से मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस देने, वहाँ पर सिर्फ ये यूं ही लिखा हुआ है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, अभी तक 2 मेथड्स आते हैं, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से उसको चेक करोगे, अगर तो हो जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज फिर नेक्स्ट प्रोसीजर पे स्विच करोगे, जो कि हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर बना हुआ है अभी फॉर द टाइम बिंग, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। So first of all, you have to make the differential equation homogeneous, and for to solving the homogeneous differential equation, we put from the left side, from the right side, y over x को v put कर लेते हैं। उसके बाद y is equals to xv, taking derivative on both sides with respect to x, and find out the value of dy by dx. When you are, ये वाला जो step है ना, to solve this type of differential equation, we put y over x is equals to v. This is a common step for all questions which you are doing for solving the homogeneous differential equation. ये सारा का सारा आपके पास सेम है। अब आपके पास आता है कि जब आप when you are finding the value of dy by dx, then put it back. आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है इन टर्म्स ऑफ x एंड y. नाउ यू हैव टू बी कन्वर्टेड इनटू v एंड x. dy लेफ्ट साइड आपके पास dy by dx, तो वहाँ पर आ जाएगा v प्लस x dv by dx, और राइट साइड पर आपके पास आ जाएगा फंक्शन ऑफ v. ये जो मैं बाकाम अभी बोल रही हूँ ना, दिस इज द जर्नलाइज्ड वे
किसी क्वेश्चन के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ, एक जनरल प्रोसीजर दे रही हूँ कि फर्स्ट स्टेप इज to make the differential equation homogeneous in the form of dy by dx is equals to function of y of x. Second step is substituting y over x is equals to v and find the value of dy by dx. Third step will be putting the value of dy by dx in the equation जो आपके पास homogeneous बनी हुई है, उस equation में जब आप लोग इसको substitute कर दोगे, then fourth step will be separating the variables, and after separating the variables, fifth step becomes integrating on both sides, and the sixth step will be write down the solution. These are the 6 steps basically for solving first order homogeneous differential equation, and if you have any type of query in it then you can ask me. फिर मैं क्वेश्चन पर आती हूँ. जी बोलिए. क्लियर है ये? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. चलें ठीक है, अगर क्लियर है तो नेक्स्ट आ जाइए. अब आपके पास ये क्वेश्चन है, आई थिंक मैडम ने भी शायद यही क्वेश्चन किया हुआ है. अगर नहीं किया हुआ तो यही किया था. यही वाला किया हुआ है. चलिए Yes, इसी को yes. ये बिल्कुल इसी को आप लोगों ने चेक करना है. x सबसे पहले यू हैव टू मेक इट होमोजीनियस. dy by dx is equals to minus x square plus y square over xy, because all the differential equations are written in this form. ठीक है, यू हैव टू मेक इट होमोजीनियस विद द हेल्प ऑफ दिस. और देखो कि हर जगह पे x एंड y वो सब की डिग्रीज जो हैं वो सेम होनी चाहिए. अगर सेम आ गई हैं देन यू फर्स्ट स्टेप फिर क्या बनता था, वी हैव टू मेक इट होमोजीनियस. होमोजीनियस बना के कैसे बनाना है, dy by dx इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ y ओवर x. ये जिधर मैं अपना एरो घुमा रही हूँ, दिस इज नॉट द फंक्शन ऑफ x स्क्वायर, sorry, y over x. This is the function of x y. We have to make it y over x. कैसे बनाओगे, dividing above and below by x square. आपके पास ये आ गया and function of y over x. ये फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो जाता है, which shows that the differential equation is homogeneous. Second step is to solve this. Put y over x is equals to v. ठीक है, and find out the value of dy by dx. The third step is substituting all the values in equation number 1. जी यहाँ पर मैंने अब आप लोगों को जो बात बतानी है वो ये है कि यहाँ पर अक्सर बच्चे मिस्टेक करते हैं. वो इक्वेशन आपने बच्चे जो भी प्रोसीजर अप्लाई कर रहे हो वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, उसको अपने गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट नहीं करना. यू हैव टू सब्स्टिट्यूट इन दोज इक्वेशंस जिसको आपने होमोजीनियस बनाया होगा. ठीक है, आपने थर्ड स्टेप पे हैं हम कि पुटिंग द वैल्यूज ऑफ dy by dx and y over x in equation. After that fourth step will be separating the variables. ये सारे steps किए हैं. After separating the variables, next step will be how to write down the solution. Solution पे मैंने काफ़ी बहस की है आप लोगों के साथ कि solution should be in terms of explicitly defined होना चाहिए. Function जो है यू कैन मीन्स देखा करो कि इन द एंड आप किसी एक वेरिएबल में अपना सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो. अगर तो कर सकते हो देन वेल एंड गुड. अगर नहीं कर सकते तो आप लोगों को एक काम ये करना है कि वेरिएबल्स को एक तरफ रहने दीजिए और इक्वल्स की दूसरी तरफ कांस्टेंट का साइन आ जाएगा. जी, अब इस क्वेश्चन में किसी भी बच्चे ने कोई भी बात पूछनी है तो मुझसे बात करें. मैम ये बता दें कि हमने वैल्यूज सब्स्टिट्यूट किस तरह की हैं. अच्छा, मैं बता देती हूँ ये आपको.
ये देखिए dy बाई डी एक्स को हमने बनाया फंक्शन ऑफ y ओवर x। अब पुट करना है हमने y ओवर एक्स इज इक्वल्स टू v। ये वाला स्टेप मैंने अगला स्टेप यहाँ नहीं किया हुआ क्योंकि प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा हुआ है, ध्यान से सुनिए। When you are putting y over x is equals to v, then y is equals to xv and taking the derivative on both sides। अगर मैं पिछली स्लाइड पर जाऊं तो ये देखें, ये वाला जो स्टेप है y over x is equals to v, v is a function of x also, y is equals to xv taking the derivative। तो याद कर लो इस लाइन को कि dy by dx will be v plus x dv by dx। उसके बाद हमने क्या किया है, इसको सब्स्टिट्यूट किया अपने यहाँ पर इसके अंदर। ओके मैम। ठीक है, अब जब आप लोगों ने सब्स्टिट्यूट किया, ये मेरे ख्याल से मैंने ये देखें, ये अगर आप लोगों को नज़र आ रहा है ना मेरा एरो, ये मैंने राइट साइड पर रफली इसको सॉल्व करके भी दिखाया हुआ है। ये देखें y ओवर एक्स इज इक्वल्स टू v, y इज इक्वल्स टू वी एक्स, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स। इक्वेशन 1 के अंदर जब इसको सब्स्टिट्यूट किया तो इवेंचुअली ये चीज़ आ जाती है। ठीक है, इसको बाय हैंड आपने लेक्चर के बाद नोट करके देखना है। ओके मैम। और कोई बात पूछिए। ये क्लियर है सबको? यस मैम। जी, रोल नंबर 1 Yes, ma'am. क्लियर है आपको? यस मैम। चलें ठीक है, अब इसके बाद आप काम लें ज़रा। काम ये था अब आप लोगों का कि ये देखिए, शो दैट द फॉलोइंग इक्वेशंस आर होमोजीनियस एंड सॉल्व। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को करके दिखा दिया गया है और आप लोगों ने फर्स्ट 6 क्वेश्चंस जो है मींस 1 to 6 क्वेश्चंस ये आप लोगों ने सॉल्व करने हैं विद द हेल्प ऑफ होमोजीनियस। इस पे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स नहीं अप्लाई कीजिएगा, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स की मैंने प्रैक्टिस करवा दी आपको। अब आप लोगों ने अपनी प्रैक्टिस करनी है फॉर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस पे। बोलिए, ये हो जाएंगे सॉल्व? मैम ये कितने करनी है हमने? ऐसा मैम चला ट्राई करेंगे। हाँ जी बच्चे बोलिए, क्या कह रहे हैं? ये भी 10 क्वेश्चन करने हैं। 10 तो नहीं है, आपके सामने स्क्रीन नहीं शेयर हो रही कि सोए हुए अभी उठे हो? नो मैम। हाँ तो बोलिए, ये स्क्रीन शेयर पे कितने, स्क्रीन पे 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं? कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं? 7 आ रही शायद। हाँ, 7th नहीं करना आपने, मैंने 7th नहीं करवाना आपको क्योंकि वो रिड्यूस है, वो होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है। आप लोगों ने अपनी प्रैक्टिस के लिए फर्स्ट 6 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक हो गया? ओके मैम। ओके मैम। चलिए अभी फिर मैं नेक्स्ट आती हूँ।
ये जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर मैंने ये दिया हुआ, ये नहीं आप लोगों ने करना। अच्छा जी, अब आप लोगों का चलें जी, काम जरा नोट कीजिए। काम आप लोगों का ये है कि आप लोगों ने आज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस के ये जो 6 क्वेश्चंस हैं इनको अपनी प्रैक्टिस में रखना है, नंबर 1। ठीक है, नोट करते जाएं इसे जरा। कर रहे हैं नोट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. रोल नंबर 17 किधर है? Yes, ma'am. जी, नोट कर रहे हैं आप भी? Yes, ma'am. ओके, सबसे पहले होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस के 6 क्वेश्चंस करने हैं और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन आप लोगों ने नोट करनी है। वन मोर टाइम उसको चेक करना है। आपको पता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन कहाँ पर है? मैम वो जो वीडियोस भेजी थी उसमें थी। हाँ, वीडियो जो मैंने भेजी थी वो था आपके पास लेक्चर नंबर 1 और उसका पार्ट 1। ठीक है, मैं अभी आप लोगों के चैट रूम पर भी इसको नोट कर देती हूँ। लेक्चर 1 पार्ट 1 का जो लास्ट स्टेज थी जहाँ पर मैडम ने एंड करी थी, वहाँ पर उन्होंने 2-4 मिनट लगाए हुए थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए। ठीक है, एक आप लोगों ने उसको चेक कर लेना है और उसके बाद आप लोगों ने वीडियो चेक करनी है लेक्चर 2 पार्ट 3। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस की। चैट रूम आप लोग चेक कर सकते हो, ये दोनों मैंने अपलोड कर दिए हैं यहाँ पर एंड यू कैन चेक इट फ्रॉम दैट साइड। पहले वो देख के आइए, एक टाइम पे हम एक ही डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि इनके जो मैं क्वेश्चंस दे रही हूँ उनको भी साथ साथ आप लोगों ने सॉल्व करना है। अब अगर मुझसे कोई बात पूछना चाह रहे हैं तो वो आप लोग मुझसे बात कर सकते हो। ऑर्डर और डिग्री क्लियर है अब सबको? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना उसमें? Yes, ma'am. Clear. अच्छा ठीक है। Clear है अच्छा, ma'am. ये हाँ, आप लोगों ने जब ये होमोजीनियस वाला काम स्टार्ट किया ना तो जरा एक काम कीजिएगा कि होमोजीनियस का ये जो क्वेश्चन मैंने अभी आप लोगों को करवाया है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो काम मैंने अभी आपको करवाया, फर्स्ट क्वेश्चन जो अभी हम लोगों ने किया है, आप लोगों के पास अगर पड़ा हुआ हो, ठहरे मैं जरा ये बोर्ड पर लिख कर बताती हूँ। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको डिस्कस नहीं करवाया और आप लोगों ने वीडियो में भी देखा है, उसमें मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि ये देखिए, उसमें मैं सिर्फ ये बात डिस्कस करने लग रही हूँ। क्या क्वेश्चन क्या था आपके पास? ये देखो, वो क्वेश्चन था आपके पास, सॉरी, X square plus Y square. एक मिनट, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ मिनट प्लीज। हाँ जी, वो था आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नेक्स्ट DX. Divided by XY.
सॉरी, मैम मल्टीप्लाई हो रहा है उनके साथ डी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई हो गया प्लस एक्स वाई एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0, मैम एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू डी 0 वाई इज इक्वल्स टू 0। 0 हाँ जी, यहाँ पे मैं ये बताने लगी हूँ। 6 क्वेश्चंस दिए हैं ना, पहले तो मुझे जरा जल्दी से इसके बारे में सोच कर बताइए, कैन यू सेपरेट द वेरिएबल्स? नो। रीजन? मैम एक्स वाई मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हाँ जी, एग्जैक्टली। रोल नंबर 35, वेरी गुड। ये जो x और y है ना, ये आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आप कभी भी इनको सेपरेट नहीं कर सकते। तो मैंने आपको जो अभी बात बताई है कि डिफरेंशियल इक्वेशंस में सबसे पहले आप लोगों ने चेक करना। अब ऐसे एक मैंने क्वेश्चन दे दिया रैंडमली कि सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें नज़र में आ रहा है कि ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर है क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व इन इट द फर्स्ट ऑर्डर। तो ज़रा मुझे बताएंगे कि व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन? डिग्री क्या है इस डिफरेंशियल इक्वेशन मैम की? डिग्री 2 है इसकी। 1। 2 है। मैम डिग्री 1 और बोलें, ये जो 1 बोल रहे हैं वो एक दफा और सोचें। मैम 2 है। अच्छा, फिर मुझे क्या, ये देखिए अभी आप लोगों ने इसको थोड़ा सा सॉल्व किया था, इन विच यू आर रिटन लाइक दिस के dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये सॉल्व किया था ना अभी आपने, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स इंटू वाई। चलो इस तरीके से मुझे बता दो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। बोले, नजर आ रहा है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जी, ऑर्डर कितना है इसका? फर्स्ट ऑर्डर है। डिग्री कितनी है आप इसकी बताएं? 1 2 2 कैसे है और 1 कैसे है? चलें बताइए। पहले तो ये 2 वाले बच्चे बताएं मुझे, ये जो 2 बोल रहे हैं कैसे आपने इसको डिफाइन किया डिग्री को? द पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव, or you can say that the exponent of the highest order derivative after the equation has been made free from the radical and fraction in its derivative. मेरे अकॉर्डिंग तो इसकी डिग्री 1 है, 2 तो नहीं आ रही। आपने जब कह दिया कि इसका आपके पास ऑर्डर 1 है तो एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर इन्वॉल्व इन इट कितना है? ये बोलिए। 1 है मैम। 1 मैम। जी, इसकी डिग्री आपके पास कितनी है? 1 है। एंड दिस इज द क्वेश्चन विच यू आर नॉट सॉल्विंग विद द हेल्प ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। एम आई राइट? यस मैम। यस मैम। अब हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ये एक आपको 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए टू आइडेंटिफाई के विच टाइप ऑफ इक्वेशन इज। मैंने कहा करो। आप लोगों ने सबसे पहले देखा कि क्योंकि देयर इज अ मल्टीप्लिकेशन बिटवीन द वेरिएबल्स, सो यू आर नॉट सेपरेटेड। उसके बाद फिर आप लोगों ने डिग्रीज को चेक करना है। x की डिग्री क्या है? 2 है। y की डिग्री क्या है? 2 है। x और y की डिग्री क्या बन गई? यहाँ पर दोनों को मिलाकर क्या बनती है? दैट इज मीन्स दैट both x and y are of the same degree, so this means that this is the homogeneous differential equation. इसके बाद होमोजीनियस वाला प्रोसीजर अप्लाई करना है। रोल नंबर 39 कौन है? हाँ जी बच्चे, अब आपकी तरफ एक्चुअली डिस्टॉर्शन सिर्फ आपकी साइड पर है,
इसको जरा देखिएगा, अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे फिर बात कर लें। ओके मैम। बंद कीजिए आप अपना माइक, जब म्यूट करते हो ना तो डिस्टॉर्शन खत्म हो जाता है। तो देयर इज एन इशू फ्रॉम योर साइड, तो उसको जरा चेक कर लेना है। जी क्लास ही समझ में आ गया अब इसको? यस मैम। हाँ जी। तो आपके पास, आप लोग जब आप अपना लेक्चर नंबर 1 का पार्ट 1 देखोगे ना, वहां पर काफी इक्वेशंस लिखी हुई हैं जिसका ऑर्डर एंड डिग्री मैडम पूछती जा रही हैं, उसको जरा चेक कीजिए। चलिए अब मुझे बताइए, अगर कोई कंफ्यूजन है तो, कोई बात पूछना चाह रहे हो तो पूछें। इज इट ओके देन? यस मैम। चलिए ठीक है। सो दिस इज द सेकेंड टॉपिक, ये आज आप लोगों का रहा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह शुरू करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और उससे पहले मैंने आप लोगों के आज चैट बॉक्स में नोट करवा दिए लेक्चर्स। इन दोनों लेक्चर्स को ज़रा नोट करके आओ, तो फिर हम लीनियर पर आते हैं। राइट? और कोई बात? जी क्लास बोलिए, ठीक है ये? यस चलिए ओके, थैंक यू फॉर द डे। इनको ज़रा कीजिए, और किसी भी बच्चे को कोई मसला हो तो वो मुझसे नेक्स्ट लेक्चर में बात करें होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। राइट? ओके मैम। ओके जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।